So today we will discuss about chemical properties of the carbon compound. Okay, so carbon compounds. So in this section we will be studying about some of the chemical properties of carbon compound. क्या सीखेंगे हम लोग इसमें? Chemical properties. We will study about the chemical properties of some carbon compounds, not all. Okay, possible नहीं है. There are various carbon compound. Okay, so properties देखेंगे हम लोग. Since most of the fuels we use are either carbon or its compounds, तो जो most of the जो हम लोग fuel जो use करते हैं ना हमारे fuel में, okay, like पेट्रोल है, बराबर है, fuel कौन से fuels use करते हैं हम लोग, okay, आपने देखा होगा पेट्रोल, बराबर है ना, we are using पेट्रोल use करते हैं हम लोग, डीजल use करते हैं, okay, we are using kerosene, okay, बहुत ही different forms of the fuels that we are using. So in these fuels the carbon is present. Okay, इसमें क्या रहता है present? Carbon is present, okay, in these compounds. Okay, so we shall study about these. So very first property we will study about the combustion. Okay, we'll study about the combustion. So chemical properties of the carbon compound, and that too very first we'll discuss about the combustion. So what is your idea about the combustion? क्या idea है आप लोगों को combustion के बारे में? When we say the combustion takes place, okay, when the combustion takes place in presence of oxygen, this combustion takes place. Okay, when we burn something, it is in presence of oxygen, it takes place, combustion होता है, बराबर है, ऐसे विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है. सो कार्बन इन ऑल द allotropic forms burns in oxygen, बराबर है, burns in oxygen. That is why जब भी क्या होता है, the carbon which will be present, okay, जो कार्बन प्रेजेंट रहेगा, कार्बन which is present in the compound, okay, which is present in the compound, जो भी कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है वो बर्न कब हो सकता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, सो वी हैव सीन दिस. ओके, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज required. Okay, oxygen is required for burning to give carbon dioxide along with the release of heat and light. Okay, तो क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होता है और क्या देता है हमें? सो इट लिबरेट, ओके, इट लिबरेट्स हीट एनर्जी एज वेल एज दी लाइट एनर्जी. हीट एंड लाइट क्या होता है? हमें मिलता है. ओके, सो the most carbon compounds also release a large amount of heat and light on burning. These are oxidation reaction. We have already learned these oxidation reaction in the very first chapter. Okay, तो देखो हम लोगों ने रिएक्शन देखा था, क्या देखा था? एक रिएक्शन देखा था कार्बन, बराबर है, और यहाँ पे मैंने लिखा भी था फ्रॉम कोल, सपोज, ओके, फ्रॉम कोल. अगर ये कोल से बर्न हो रहा है, ओके, कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो क्या मिलता है हमें यहाँ पे? व्हेन इट विल बर्न इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर है. कार्बन क्या होगा? अगर मान लो कोल ले लेते हो आप लोग, बराबर है, कोल, कोल में क्या है? कार्बन कंटेंट है. सो दिस कार्बन कंटेंट, ओके, from the coal, okay, so from a coal, okay, from a coal carbon, this carbon will burn in presence of oxygen. So this is what the burning will takes place. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं that it is burning. So carbon dioxide gas form होता है burn होने के बाद, okay, and this carbon dioxide gas can release into the atmosphere along with क्या हो जाएगा? बर्न होगा तो वो हीट भी रिलीज करेगा. कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में. आपने देखा होगा बर्निंग ऑफ फायर. Okay, it also creates light. Okay, so it creates heat and light. That's why we are writing heat and light. Okay, so this is what a combustion process. Okay, so chemical properties of the carbon compound. Very first property is the combustion. So carbon which is present in that compound will burn in presence of oxygen. So most of the carbon compounds it will emit, it will release carbon dioxide gas along with the emission of heat and light. समझ में आया सब लोगों को? heat and light हमें मिलता है, बराबर है, heat and light हमें मिलता है एटमॉस्फेयर में. ओके, सो दिस इज व्हाट फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज. और भी हम लोग देख सकते हैं रिएक्शन, लाइक सपोज मीथेन. मीथेन किस में होता है? मीथेन गैस प्रेजेंट CH4,
मीथेन गैस किस में होता है प्रेजेंट? CH4। यस, हम जो गैस सिलेंडर यूज करते हैं घर पे उसमें क्या होता है? मीथेन गैस होता है। सो मीथेन गैस विल बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस विल आल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड H2। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2। ओके, H2 फॉर्म करेगा एंड it will also emit the heat. It will also release the heat and light into the surrounding. So this is the property, this is the property, chemical properties of the our carbon compound. This is the chemical properties of the compound. Okay, हम लोग और भी देख सकते हैं एग्जांपल लाइक इथेनॉल। ओके, सपोज इथेनॉल। ओके, CH3 CH2OH। ओके, CH3 CH2OH। okay, CH3 CH2OH when it is burned in presence of oxygen, when it is burned, ये बैलेंस नहीं है, आप लोग बैलेंस कर सकते हो इस रिएक्शन को। okay, so when it will burn in presence of oxygen, it will also release carbon dioxide gas along with the water to release heat and light। heat and हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? light मिलेगा। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द chemical properties of the carbon compound. First property है एक combustion. So we'll uh, discuss this, okay, with the help of this activity. Look at the activity number 4.3, all of you. सब लोग activity number 4.3 देखो। Okay, so this activity needs the teacher's assistant to take some carbon compounds, naphthalene, camphor, alcohol. Okay, ये कार्बन कंपाउंड्स है, नैप्थालीन है। ओके, नैप्थालीन लिया यहाँ पे, और क्या क्या लिया है यहाँ पे? कैम्फर लिया है। ओके, और क्या लिया है? अल्कोहल लिया गया है। ओके, सो दिस थ्री कंपाउंड्स दे हैव टेकन। सो ऑल ऑफ यू लुक एट द एक्टिविटी नंबर 4.3। 4.3 एक्टिविटी देखो सब लोग। टेक सम कार्बन कंपाउंड्स, naphthalene, camphor, alcohol, one by one on a spatula and burn them. Okay, एक स्पून में, ओके, लैबोरेटरी में एक स्पून रहता है, उसको बोलते हैं स्पैचुला। एक स्पैचुला में आपको क्या लेना है? नैप्थैलिन लेना है। ओके, नैप्थैलिन, नैप्थैलिन वी हैव टू टेक कैम्फर, कैम्फर भी लेना है, और साथ में अल्कोहल। ओके, अल्कोहल वी हैव टू टेक one by one on a spatula and burn them. Observe the nature of the flame and note whether smoke is produced, okay, or not. Place a metal plate above the flame. Is there a deposition on a plate in case of any of the compounds? Okay, so क्या मिलेगा अगर हम लोग क्या करते हैं? इसको एक स्पून में लिया हमने, सपोज ऐसे एक स्पून में, एक स्पैचुला में हमने अगर ऐसे लिया इसको, ओके, एक स्पैचुला में लिया हमने इसको, और इसको अगर हमने बर्न किया, ओके, इफ वी आर बर्निंग, ओके, सो दिस इज स्पैचुला। ओके, स्पैचुला में हमने ये लिया, ये जो भी कंपाउंड है ये लिया, नैप्थैलिन, कैम्फर, अल्कोहल, उसको बर्न किया। ओके, सो इफ वी आर बर्निंग, सो व्हाट विल हैपन? क्या होगा? ओके, नैप्थैलिन, फॉर वेरी फर्स्ट केस नैप्थैलिन, ओके, इट इज अ अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ओके, ये नैप्थैलिन क्या है? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। एंड the alcohol and camphor they are saturated hydrocarbons। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि आप लोग भी लिखो अपने बुक पे, these are saturated hydrocarbon। ये क्या है? saturated hydrocarbon है, saturated hydrocarbon है। and this is naphthalene is unsaturated compound, unsaturated है, unsaturated। So saturated hydrocarbons will generally give a clean flame। okay, saturated जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है, ओके, कैम्फर, अल्कोहल, आपने ऑब्जर्व किया होगा, कैम्फर कपूर आप लोग जलाते हो घर पे, बराबर है? सो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट दिस कैम्फर, कैम्फर जब बर्न होता है या फिर अल्कोहल जब बर्न होता है, तब हमें क्या मिलता है? क्लीन सरफेस मिलता है, या फिर हम बोल सकते हैं वी गेट अ क्लीन फ्लेम। ओके, जो क्लीन जो फ्लेम होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल गिव अस क्लीन फ्लेम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्लीन फ्लेम? तो क्लीन फ्लेम वो है जिसमें ब्लू कलर का फ्लेम मिलता है। ओके, ये बात ध्यान में रखो आप लोग। ओके, सो it will alcohol है, okay, this will create a clean flame
in the clean flame the color of the flame will be blue in color, mostly blue in color. तो जब भी blue color का flame निकले mostly, okay, that will be what, a clean flame. While unsaturated carbon compound will give a yellow flame with lots of black smoke. Okay, so it will produce black smoke, black flame. Okay, black flame will generate in this case. Okay, black flame बोल सकते हो आप. Okay, so sorry, yellow flame. Okay, yellow color का flame है और यहाँ पे जो deposit होगा वो yellow flame with lots of black smoke. Okay, with lots of black smoke. Okay, जो smoke जो निकलता है वो black smoke निकलता है in case of naphthalene because it is unsaturated, because it is unsaturated. Okay, so those are saturated hydrocarbons. उनको burn करने के बाद clean flame मिलता है हमें. Okay, और जो unsaturated है they will give a yellow flame. Okay, with black smoke. So what will happen if the black smoke will be there? Okay, question पूछा है, observe the nature of flame and note whether smoke is produced. Okay, so in case of naphthalene, naphthalene में देखो आप लोग क्या हो रहा है, black smoke दिखाई दे रहा है. Okay, यहाँ पे जो flame है, यहाँ पे clean flame है. Okay, in these two cases. Place a metal plate above the flame. Is there a deposition? Deposition यानी इस फ्लेम के ऊपर आप ऑब्जर्व करो. ओके, आप जो कोई भी कैंडल लो या फिर कोई भी फ्लेम, उसके ऊपर कोई एक सरफेस लो, मेटालिक सरफेस, ताकि वो बर्न ना हो. तो आप ऑब्जर्व क्या करते हो, क्या फॉर्म होता है उसके ऊपर? यस, उसके ऊपर क्या फॉर्म होता है? Yes, black substance. What is that black substance is called as? That black substance is called as soot. Formation of soot. क्या बोलते हैं उसको? Soot formation. Yes, double OT. Soot formation. ओके, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, आप जो घर पे जो दिया वगैरह जलाते हो, सपोज केरोसिन का दिया है तो उसमें बहुत ज्यादा निकलता है सूट. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ सूट, फॉर्मेशन ऑफ सूट. सो this result in a sooty deposit, that is formation of soot on a metal plate. In activity this 4.3. Okay, so limiting the supply of air result in incomplete combustion. क्या होता है आपको पता है? This one term that is called as a incomplete combustion. What is the meaning of incomplete combustion? Incomplete combustion कब होता है? Incomplete combustion तब होता है जब presence of oxygen, okay, while burning is in less amount. Okay, if there is a less amount of oxygen is present while burning. Okay, less amount of oxygen, यहाँ पे लिखता है O2 oxygen. If less amount of oxygen is present while combustion process is going on, that time what happens? It is incomplete combustion. और incomplete combustion जब होता है तब जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो सब्सटेंस में, ओके, सपोज इस सब्सटेंस में अगर कार्बन जो प्रेजेंट है वो अगर इनकम्प्लीट बर्न हुआ तो क्या करता है? इट क्रिएट द फॉर्मेशन ऑफ सूट. सूट फॉर्मेशन, ब्लैक कलर का जो डिपॉजिट जो आपको दिखता है, दैट इज व्हाट, सूट फॉर्मेशन. एंड दिस सूट फॉर्मेशन गिव्स राइज whenever there is a incomplete combustion takes place. Okay, of even saturated hydrocarbons giving a सूटी फ्लेम. तो ये जो सूट फॉर्मेशन होता है ये दोनों भी केस में हो सकता है, सैचुरेटेड में भी और अनसैचुरेटेड में भी. ओके, कंडीशन क्या है उसकी? लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन व्हाइल बर्निंग, व्हाइल कंबशन प्रोसेस. जब भी ये कंबशन प्रोसेस होता है तब जहां वहां पे जब ऑक्सीजन की जो लेवल है, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, अगर लेस अमाउंट में है तो जो कार्बन है उसके अंदर वो बर्न नहीं हो पाएगा कंप्लीटली. और वो बर्न नहीं हो पाएगा तो क्या करता है? कार्बन एक जो डिपॉजिट लेयर उसकी डिपॉजिट कर देता है, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज द सूट. यस, डबल ओटी, सूट, फॉर्मेशन ऑफ सूट. ओके, सो द गैस केरोसिन स्टोव आपने देखा होगा, यूज्ड एट होम, हैज इनलेट फॉर एयर सो दैट सफिशिएंट ऑक्सीजन रिच मिक्सचर इज बर्न टू गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम. बराबर है. आपने, आप लोगों ने पता नहीं देखा है या नहीं देखा है स्टोव, अगर जिन्होंने देखा होगा तो वहां पे जो क्या होता है कि उसमें एक स्मॉल होल प्रेजेंट होता है सो दैट ऑक्सीजन की जो लेवल है, ओके, ऑक्सीजन की जो अमाउंट है व्हाइल कंबशन,
वो कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, उसके लिए एक होल दिया जाता है, उसमें से क्या होता है ऑक्सीजन पास होता है और जो कंबशन है वो इफेक्टिव होता है। ओके, अगर वो नहीं दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो आपने देखा भी होगा जो पुराने जो स्टोव है केरोसिन स्टोव, और उसको देखो आप लोग कितना ब्लैक कलर का डिपॉजिट उसमें जम जाता है। उसका रीजन क्या है, द रीजन इज वहां पे जो ऑक्सीजन की जो लेवल है वो कम कम है। ओके, एंड ड्यू टू दैट the burning that will take place incomplete combustion, and this incomplete combustion will cause the soot formation. समझ में आया सब लोगों को, why there will be the formation of soot? Okay, formation of soot will be there. So mixture is burned to give a clean blue flame. Okay, अगर हमें वहां पे complete combustion होता है तो so if you observe the bottoms of cooking vessel, okay, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा जो बॉटम है कुकिंग वेसल के, ओके सपोज दिस इज अ कुकिंग वेसल, उसका जो बॉटम है वो आप ऑब्जर्व करो, उसका जो बॉटम है वो ऑब्जर्व करो, अगर उसमें ब्लैक कलर का जो डिपॉजिट है वो अगर हो जाता है, ओके, सो इफ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल गेटिंग ब्लैक एंड, ओके, जब ब्लैक कलर हो जाता है इट मीन्स दैट द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड एंड फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड। ओके, जो एयर है वहां पे वो क्या हो रहा है, नहीं जा पा रहा है। ओके, सो इट मीन्स दैट द air holes are blocked and the fuel is getting wasted. Fuels such as coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur. Okay, तो जो fuels में प्रेजेंस होता है नाइट्रोजन का भी, ओके, सल्फर का भी प्रेजेंस होता है। So very important thing that while burning it requires presence of oxygen. So this their combustion results in the formation of oxides of sulfur and nitrogen which are major pollutant in the environment. आपने देखा भी होगा जो वेसल है, ओके, वेसल है, वेसल में नीचे वाले जो एरिया सरफेस एरिया होता है वो क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, बराबर है ना, यू माइट हैव ऑब्जर्व दिस ब्लैक एंड कलर दिखाई देता है। ओके, तो वो ब्लॉक हो जाता है कंप्लीटली। ओके, so this is about the very first chemical property that is called as the chemical. So now we will discuss about its second property. Okay, second property, that is the oxidation. Okay, so we will understand this oxidation process. Okay, oxidation, chemical property of carbon compound with the help of the activity number 4.5. Okay, all of you look at the activity number 4.5. Activity number 4.5. देखो सब लोग, take about 3 ml of ethanol, CH3 CH2OH is the formula of ethanol. Okay, alcohol functional group है, alcohol compound है ये वाला. So take about 3 ml of ethanol in a test tube and warm it, okay, gently in a water bath. Okay, water bath में, water bath का meaning क्या होता है, water bath का meaning क्या होता है, ये suppose एक बीकर है, ओके, इस बीकर में हमने क्या लिया, पानी लिया, ओके, और पानी को जब हमने हीट किया, ओके, व्हेन वी आर हीटिंग दिस वाटर, ओके, व्हेन वी आर हीटिंग दिस वाटर, ओके, यहाँ पे मैं हीट कर रहा हूँ किसको, वाटर को हीट कर रहा हूँ, ओके, और यहाँ पे एक रखा क्या है, टेस्ट ट्यूब रखा है, सपोज ऐसे, सपोज दिस इज द टेस्ट ट्यूब, ओके, उस टेस्ट ट्यूब में क्या रखा है मैंने, उस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या रखा है, इथेनॉल रखा है, CH3CH2OH, ethanol is, which is present in the test tube, 3 ml of, so such kind of a process, okay, such kind of a process when the the compound like ethanol, okay, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, we are not heating directly, हीट नहीं डायरेक्टली नहीं कर रहे हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको इस कंटेनर में रखा है, इस कंटेनर में जो पानी है, वाटर है, उसको हम लोग हीट कर रहे हैं, और उसकी हीट किसको मिलने वाली है, अभी इथेनॉल को मिलने वाली है, जो कहाँ पे है, इस टेस्ट ट्यूब में रखा गया। सच काइंड ऑफ इनडायरेक्ट हीटिंग इज कॉल्ड एज वाटर बाथ। क्या बोलते हैं इसको, वाटर बाथ। यू विल कम अक्रॉस विथ दिस टर्म वाटर बाथ, ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है। ओके, वाटर बाथ, वाटर बाथ का मीनिंग क्या है, हमें उसको हीट करना है वाटर को, ओके, एंड उसकी हीट यूटिलाइज करना है दूसरी जगह पे, ओके, कॉल्ड एज अ वाटर बाथ। Add a 5% solution of alkaline potassium permanganate.
ओके अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, क्या ऐड करना है, ऐड 5% सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन ओके पोटेशियम परमैंगनेट ओके सॉल्यूशन KMnO4 KMnO4 क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट ओके पोटेशियम परमैंगनेट ड्रॉप बाय ड्रॉप टू दिस सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप ओके टू दिस सॉल्यूशन। पहले सबसे पहले क्या लेना है हमें, टेक अबाउट 3 ml ऑफ इथेनॉल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड वार्म इट जेंटली इन अ वाटर बाथ, ऐसे इसको हीट करना है। एड अ 5% solution of alkaline potassium permanganate drop by drop to this solution okay तो उसमें हमें क्या करना है, एक सॉल्यूशन क्रिएट करना है जिसमें 5% हो क्या KMnO4 ओके एंड वो जो सॉल्यूशन है वो क्या करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें यहाँ पे किस में डालना है, इथेनॉल में डालना है यहाँ पे ओके सो add 5% solution of alkaline potassium permanganate drop by drop to this solution. Does the color of potassium permanganate persist when it is added initially? तो क्या होता है, जब आप ये सॉल्यूशन है पोटेशियम परमैंगनेट का, जब यहाँ पे कुछ ड्रॉप डालोगे यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में, जहां जिस टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी इथेनॉल प्रेजेंस है, तब क्या हो जाएगा, दिस कलर okay this color because you know that what is the color solution of this KMnO4 जो solution है उसका कलर क्या होता है, बताया था मैंने आप लोगों को, क्या होता है सॉल्यूशन, इसका कलर क्या होता है, कॉपर सल्फेट का बताया था मैंने ब्लू कलर होता है, और इसका क्या होता है KMnO4 का पोटेशियम परमैंगनेट का रेड इन कलर ओके इट इज व्हाट रेड इन कलर। तो जब आप ड्रॉप डालोगे, इफ यू ड्रॉ few drops of this potassium permanganate solution into this ethanol ओके तो क्या कौन सा कलर फॉर्म करेगा, वो रेड कलर फॉर्म करेगा, बिकॉज इसका कलर क्या होता है, रेड कलर होता है, इसका सॉल्यूशन का क्या होता है, रेड कलर होता है। तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वेदर दी क्या है क्वेश्चन, यस डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट परसिस्ट व्हेन इट इज एडेड इनिशियली, द कलर डिसअपियर्स इनिशियली, कलर क्या हो जाएगा, कलर विल डिसअपियर इनिशियली ओके दिस कलर विल डिसअपियर ओके सो दिस विल डिसअपियर इनिशियली ओके ये क्या हो जाएगा, कलर डिसअपियर हो जाएगा इनिशियली। एंड why does the color of potassium permanganate not disappear when excess is added okay अभी क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे now we will understand this okay why the color will disappear initially and why it will not। so consider this is the potassium permanganate okay यहाँ पे आप लिख लो, नहीं पता अगर है तो KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट okay potassium permanganate, this is a potassium permanganate solution, few drops of potassium permanganate solution is added into ethanol। तो क्या हो जाता है, ये डिसअपियर हो जाता है, रेड कलर क्या हो जाता है, दिस रेड कलर इनिशियली विल डिसअपियर, क्यों डिसअपियर हो जाएगा, ये अल्कोहल कंपाउंड है ओके तो दिस अल्कोहल विच इज प्रेजेंट इन दिस इथेनॉल विल रिएक्ट विद दिस potassium permanganate and the initially the color will disappear, initially color will disappear, color will disappear disappear कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, बराबर है, क्यों, क्योंकि जब ये पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ये अल्कोहल रिएक्ट करेगा उसको डिसअपियर कर देगा ओके बट इफ वी आर एडिंग दिस KMnO4 सॉल्यूशन वंस अगेन, उसमें हम लोग ऐड करते गए बट इसमें जो अल्कोहल जो प्रेजेंट है, इसमें जो अल्कोहल जो प्रेजेंट है वो खत्म हो जाएगा ओके आफ्टर सर्टेन टाइम, वोलेटाइल प्रॉपर्टी है ओके वोलेटाइल प्रॉपर्टी है सो ये खत्म हो जाएगा एंड देयर विल बी नो मोर अल्कोहल विल बी प्रेजेंट in the solution to react with this KMnO4 solution which is of red color, and that's why after some time okay after some time when you will add more drops of this KMnO4 solution potassium permanganate solution तो ये जो कलर है it won't disappear, वो disappear नहीं होगा और वो आपको जो solution है अंदर वो उसमें वो रेड कलर का आपको solution मिलेगा। समझ में आया उसका रीजन क्या है, तो the reason is that initially when KMnO4 is added to ethanol it is used by it
and color disappear हो जाएगा color, but after completion of reaction there is no more ethanol in the solution, so adding more KMnO4 makes solution red. तो ये solution क्या बनेगा, solution red बनेगा. ओके समझ में आया सब लोगों को this activity? So what we are understanding, okay, what we are understanding, we will understand what is their oxidation हो रहा है इसमें. Okay, so KMnO4 is acting as a catalyst, इसमें act हो रहा है. Okay, वो क्या कर रहा है इसमें, okay, देखेंगे हम लोग. It is adding some oxygen. So you have learned about oxidation reaction in the first chapter. हम लोगों ने देखा हुआ है oxidation reaction. So carbon compounds can be easily oxidized, okay, or combustion. Okay. In addition to this complete oxidation, we have reactions in which alcohols are converted to carboxylic acid. अब ये अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये कैसे चेंज हो रहा है, ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है, वो हम लोग देखेंगे अभी एग्जांपल से. ओके, एग्जांपल देखेंगे हम लोग, इथेनॉल का एग्जांपल देखेंगे. हाउ इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट, ओके, और डाइक्रोमेट, हाउ इट इज चेंजिंग इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. सो विल सी दिस. CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, this is for alcohol, that is ethanol. Ethanol है, okay, ethanol. When this ethanol in presence of the alkaline nature of KMNO4 potassium permanganate, okay, when it is heated, okay, अभी देखो हमने सेम जो एक्सपेरिमेंट किया, when it is heated, okay, or acidified okay, acidified dichromate, okay, potassium dichromate CrO7, okay, CrO7 के साथ जब हम लोग इसको हीट करते हैं, आइदर अल्कलाइन नेचर ऑफ KMnO4 के साथ हीट कर रहे हैं, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट. ओके, सो पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब हम लोग इसको, सो दीज आर एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यहाँ पे क्या हो रहा है, तो दिस आइदर दिस और आइदर दिस, आप देख सकते हो उसमें भी O4 है, उसमें भी O7 है. सो दीज आर एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दीज आर एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या पर्पस है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ऐड करता है. सो व्हेन वी आर एडिंग दिस ऑक्सीजन, सो इट विल फॉर्म CH3COOH. व्हाट इज दिस कंपाउंड, COOH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है. बराबर है ना, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है. इथेनॉल ये क्या है, अल्कोहल है. इथेनॉल will change into this ethanoic acid. This ethanol will change into ethanoic acid. What is this ethanoic acid? Ethanoic acid is a carboxylic acid. Ethanoic acid क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. देखो कैसे चेंज हो रहा है. सो इथेनॉल when it is heated in presence of either alkaline, प्रॉपर लिखा हुआ है, either alkaline कैटलिस्ट बोल सकते हो आप इसको, अल्कलाइन कैटलिस्ट है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ओके, हीट करना पड़ेगा हमें, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ हमने अगर इसको हीट किया इथेनॉल को, अल्कोहल कंपाउंड को, तो वो क्या देता है हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है. यहाँ पे कौन सा दे रहा है, वो इथेनोइक एसिड हमें दे रहा है. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस. बराबर है ना, ऑक्सीडेशन है ना. क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ऑक्सीजन है यहाँ पे देखो ऐड हो रहा है यहाँ पे. ओके, इनिशियली इट इज ओनली OH. ओके, OH इज व्हाट, इथेनॉल, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, उसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन उसमें और एक ऐड हो गया. ओके, मींस व्हाट, इट इज ऑक्सीडाइज्ड. इट इज oxidized. The process is oxidization process. Okay, so we see that some substances are capable of adding oxygen to others. These substances are called as oxidizing agent. We know about it. Oxidizing agent क्या होता है. So here in this case, alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichromate are oxidizing alcohols to acids. तो ये क्या कर रहे हैं, alkaline
KMNO4 or acidified potassium dichromate, they are oxidizing ethanol. They are oxidizing ethanol. Oxidize किसको कर रहे हैं? Ethanol को oxidize कर रहे हैं. So that is adding oxygen to starting material. Hence they are known as oxidizing agent, and that's why they are called as the oxidizing agent. Okay. So have you understood? समझ में आया सब लोगों को? Oxidizing reaction, how these alcohols are getting oxidized to convert into its carboxylic acid. किस तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं. So now we'll discuss about third property, chemical properties of carbon compound, that is addition reaction. So what is this addition reaction? So unsaturated hydrocarbons, unsaturated which are having double triple bond. Okay. So unsaturated hydrocarbons add hydrogen in presence of catalyst such as palladium or nickel. Okay, catalyst है palladium या फिर nickel to give saturated hydrocarbons. तो क्या होता है इसमें? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में. सो विल राइट डाउन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन. ओके, हाइड्रोकार्बन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन उसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन रहेगा उस कंपाउंड में. अनसैचुरेटेड मींस व्हिच इज फॉर्मिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड. So unsaturated hydrocarbon that will be in presence of catalyst. Okay, in presence of the catalyst like palladium or nickel. Okay, palladium या फिर nickel के presence में. Okay, in presence of palladium or nickel, they will give rise to a saturated hydrocarbons. They will give rise to a saturated hydrocarbon. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो बाय दिस प्रोसेस टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कैटलिस्ट आर सब्सटेंस दैट कॉज द रिएक्शंस टू ऑकर और प्रोसीड एट डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड. यानी क्या है, हमें तो पता है कैटलिस्ट का मीनिंग क्या है. तो ओके, सो इट विल कन्वर्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सो दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ vegetable oils. हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल. ओके, तो उसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं. ओके, सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ. तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं. मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे अगर मान लो H2 अगर मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे. ओके, सो हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं. ओके, सो एडिशन रिएक्शन, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द एडिशन रिएक्शन. वी आर एडिंग, क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग इसमें? व्हाट वी आर एडिंग हियर? वी आर एडिंग हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड, जो पहले किस फॉर्म में है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में है. इन प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम और निकेल, ओके, वी आर एडिंग हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू गेट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. हमें क्या चाहिए? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिए. इन प्रेजेंस ऑफ दिस टू कैटलिस्ट हम लोग उस पर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं. दैट्स व्हाई we are saying the addition reaction. This is done in what? Hydrogenation of vegetable oil. Vegetable जो oil होते हैं, okay, using nickel catalyst. Vegetable oils generally have long unsaturated carbon chain. Okay, long unsaturated carbon chain, while animal fats have saturated carbon chain. Okay, so देखेंगे हम लोग यहाँ पे. So the example is like this. ये है सीस कार्बन विच इज अटैच विद चेन आर. यहाँ पे जो आर लिखा हुआ है, ओके, वो चेन से अटैच है. ओके, सो दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स. ओके, सो नाउ वी विल ऐड हियर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन ऐड करेंगे. ये चेन है. ओके, जो आर आर लिखा हुआ है ये क्या है? दिस इज अ चेन. ओके, सो वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव अ लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन. Okay, so vegetable oil, suppose this is a vegetable oil. Suppose ये वाला क्या है? Vegetable oil है. Okay, आप देख सकते हो in this vegetable oil में. Okay, so unsaturated hydrocarbon. Okay, chain होती है ये वाली. RR जो लिखा हुआ है ये chain है एक टाइप की. Okay,
और आप देख सकते हो यहाँ पे इस कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मीन्स इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. So in presence of nickel catalyst, this vegetable oil, in presence of nickel catalyst में हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, एंड whenever we are adding hydrogen, तो ये देखो ये कैसे हो रहा है, चेंज R C C and this is R, ओके, और हाइड्रोजन हमने यहाँ पे ऐड किया है, ओके. तो देखो ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बिकॉज वी आर ऑब्टेनिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होता है, और ये जो देखो हाइड्रोजन हमने ऐड जो किया, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, ये ऐड हो जाएगा लाइक दिस, ओके. सो वी विल गेट इन दिस वे द वेजिटेशन, ओके, in this way the hydrogenation of vegetable oil using nickel catalyst is done. Vegetable oil generally have long unsaturated carbon chain while animal fats have saturated carbon chain. ये बात ध्यान में रखो आप लोग, ये MCQ में पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, ओके. व्हाट इज द जो एनिमल जो फैट्स है, एनिमल फैट्स, ओके, सो इट इज अ सैचुरेटेड कार्बन चेन, उसमें सैचुरेटेड कार्बन चेन होता है, और वेजिटेबल ऑयल में unsaturated hydrocarbon chain होता है. Unsaturated hydrocarbon chain in case of vegetable oil and animal fats में saturated hydrocarbon chain होता है, okay. So you must have seen advertisements stating that some vegetable oils are healthy, okay. Animal fats generally contain saturated fatty acid, okay, which are said to be harmful for health, okay. जो एनिमल फैट्स होते हैं वो के विचार सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स which are said to be harmful for health. Oils containing unsaturated fatty acid should be chosen for cooking. कुकिंग के लिए कौन सा यूज करना चाहिए, ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओके. सो अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है वो चूज करना चाहिए व्हाइल कुकिंग, अनसैचुरेटेड, ओके, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओके. तो ये यूज करना चाहिए वेजिटेबल, ओके, ये वाला चूज करना चाहिए फॉर कुकिंग. नेक्स्ट वन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाट दे आर सब्स्टिट्यूटिंग देखेंगे हम लोग. फोर्थ, ओके, प्रॉपर्टी देख सकते हैं हम लोग, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Substitution reaction, okay, substitution reaction. So saturated hydrocarbons are fairly unreactive. Saturated जो hydrocarbons होते हैं वो fairly unreactive. क्यों वो unreactive होते हैं, क्योंकि उसमें जो बॉन्ड जो फॉर्म है सिंगल बॉन्ड, और हमें पता है जो ये सिंगल बॉन्ड जो फॉर्म करते हैं मोस्टली these are the unreactive. Saturated hydrocarbons are fairly unreactive and are inert in the presence of most reagents. However, in presence of sunlight, okay, however, in presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbon, okay, chlorine is added to hydrocarbons in very fast reaction, chlorine can replace the hydrogen atom, okay. Chlorine can replace the hydrogen atoms one by one. It is called substitution reaction. तो क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, बराबर है. एक जो कंपाउंड इसमें जो हम लोग ऐड कर रहे हैं उसको वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है. कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहा है वो देखेंगे हम लोग रिएक्शन से. सपोज CH4 मीथेन, इसमें दिस इज वेरी फास्ट रिएक्शन, जिसमें हमने क्या ऐड किया है, क्लोरीन ऐड किया है, Cl2. सो इट विल गिव राइज टू CH3Cl plus HCl and this takes place in presence of sunlight, okay, in presence of sunlight. This reaction that takes place in presence of sunlight, substitute reaction. देखो इसमें क्या हो रहा है, CH4 when reacts with chlorine in presence of sunlight में क्या मिल रहा है, CH4Cl plus HCl मिल रहा है यहाँ पे, ओके. सो क्या हो रहा है यहाँ पे, इन दिस प्रोसेस व्हाट इज हैपनिंग, क्लोरीन इज रिप्लेसिंग हाइड्रोजन. आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, यहाँ पे
एक यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ओके, इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है, ये देखो आप देख सकते हो, ओके, क्लोरीन क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, ओके, और एक क्लोरीन यहाँ पे जाके अटैच हो गया, ओके, एक क्लोरीन यहाँ पे जाके अटैच हो गया और इसने एक हाइड्रोजन इसका रिमूव कर दिया, ओके, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. So chlorine can replace the hydrogen atoms one by one. It is called substitution reaction because one type of atom or groups of atom takes the place of another. A number of products are usually found with the higher homologous of alkane. तो देखो अभी ये जो अल्केन है बराबर है, व्हाट इज दिस CH4 मीथेन, ओके, मीथेन THANE मीथेन, ये क्या है, अल्केन है. अगर हायर ऑर्डर का हमने अल्केन लिया, ओके, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑक्टेन, डेकेन, लाइक दिस, ओके, तो उसमें क्या रहेगा, कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा रहेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में रहेंगे. तो ये क्लोरीन क्या करते जाएगा, उनको रिप्लेस करते जाएगा वन वन एटम्स के, हाइड्रोजन के वन वन एटम के. अभी जो देखो सिर्फ मीथेन लिया था हमने, बराबर है, मीथेन लिया है इसमें, तो ऐसे ही ये क्या करते जाएगा, रिप्लेस करते जाएगा हाइड्रोजन को, यहाँ से रिप्लेस करते जाएगा, ओके. So this replacing of hydrogen by chlorine in presence of sunlight is called as the substitution reaction. A number of products are usually formed. तो जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें यहाँ पे देखो, इट इज अ लोअर ऑर्डर, बराबर है ना, लोअर ऑर्डर अल्केन कंपाउंड है, बराबर है, लोअर ऑर्डर अल्केन कंपाउंड है, हायर ऑर्डर अल्केन कंपाउंड यानी और इससे ज्यादा, बराबर है, जिसमें ज्यादा कार्बन है, जिसमें ज्यादा कार्बन एटम है, उसको, उस अल्केन को अगर सिलेक्ट करेंगे हम लोग, तो इसमें जो भी हमें फाइनल जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ओके. सो इन दिस वे दीज आर दी प्रॉपर्टीज, ओके, दीज आर दी प्रॉपर्टीज.